Good morning, everyone. We are doing chapter 16, our constitution, and in this we have discussed rule of law. It means that every citizen of the country is equal in the eye of law. There is no discrimination on the basis of caste, religion, gender, social or economic status. Now our next topic is the constitution. Now the question arises that what is constitution? Every country has a constitution, but what it is? So let's start. Constitution is a body of fundamental rules according to which the government of a country functions. Constitution रूल्स की एक बॉडी है, वो रूल्स जो नेसेसरी हैं हर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, एंड अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री वर्क्स. ओके, इन सिंपल लैंग्वेज ये रूल्स हैं, रूल्स का एक सेट है जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट वर्क करती है. दैट्स इट. इट कंटेन्स द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द various organs of the government and their mutual relationship. ये powers और functions इसमें written हैं different government organizations के लिए और उनके mutual relationship के लिए. There are many different organs of the government. We have read in chapter 18. Executive, legislature and judiciary, these are the organs, main organs of the government, and how they works, what are the relation between them. All these things are written in the constitution. How they behave with each other, what is the relationship, how do they work, right? All the rules, all the things are written in the constitution. Constitution also defines the right of the citizen. We have read the right to equality in class 7th. Do you remember that? Right to equality हमने रीड किया था और बहुत से और भी राइट्स हैं हमारे पास. तो ये सब राइट्स किसने दिए हमें? All these rights are written in the Constitution. That's why we are having these rights. So, Constitution defines the rights of the citizen. Constitution में citizens के लिए rights लिखे गए हैं. The relation between the government and the citizen. Government और citizen के बीच में क्या relationship है? How the government forms? Who elects the government? How they elect the government. ओके, तो एक कॉमन पर्सन और गवर्नमेंट के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, जैसे भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी, वो सब चीज़ें भी कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है. Therefore, in the Indian democratic setup, the constitution is pivot and the primary source of our laws. हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप में कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है, एंड इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ आर लॉज. प्राइमरी मतलब सबसे पहला सोर्स, फर्स्ट सोर्स ऑफ लॉ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, प्राइमरी सोर्स. ओके, यहीं से हमें लॉज मिल रहे हैं. इट गिव्स अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द लॉज आर मेड एंड द कंट्री वर्क्स. कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक प्रिंसिपल्स रिटन हैं जिन पर लॉज फर्दर नेक्स्ट ईयर्स में, फ्यूचर में लॉज बनाए जा सकते हैं एक कंट्री के लिए, और वो कंट्री आगे फ्यूचर में भी या पहले पास्ट में किस तरह से वर्क किया, ये सब किसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, पूरा डिटेल्ड वे में मेंशन्ड है वहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे जो वैल्यूज़ हैं, दोज आर रिटन इन
constitution in a detailed manner, and on the basis of those principles our government can make the laws and work for the country. हमारी गवर्नमेंट लॉज बनाती है और कंट्री के लिए वर्क करती है. Clear? Now another question is that why do we need a constitution? ठीक है, हम खुद ही बहुत समझदार हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है. Why do we need a constitution? As we all know that India is a vast country. There are different type of landforms, different type of culture, societies, religion in our country. Different people belonging to different religion or regions who speak different languages have different lifestyle. Through different in belief and action, they have many things in common. They may or may not agree on all the issues. Therefore, the Constitution provides a set of rules, principles and a law acceptable to almost all on the basis of life governance of the country. अब हमारी कंट्री में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पर्सन्स हैं जो अलग अलग कल्चर से, रिलीजन से बिलोंग करते हैं. उनकी सोच एक जैसी नहीं है, बट somehow they are equal, they are the same, they are Indians. Okay, so our constitution gives us a set of rule. हमारे constitution ने ऐसे rules बनाए जो सबको, जिस पर सब agree थे, सबको acceptable थे, सब उसे accept कर रहे थे कि yes, these laws are good and we agreed on that. ये सब laws कॉमन पर्सन की वेलफेयर के लिए थे, उनकी अच्छाई के लिए थे. एंड दीज आर द बेसिस ऑफ लाइफ एंड गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. ये जो लॉज हैं ये हमारी लाइफ का बेस है और हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को वर्क करने में हेल्प करते हैं. इट इज़ अ मल्टीपर्पस डॉक्यूमेंट which caters to our needs, requirements, future aspirations and the ideals set before us. To meet these requirements, the Constitution serves the following purposes. अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? ये मल्टीपर्पज़ डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारी नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को, हमारी फ्यूचर जो एस्पिरेशंस हैं, इच्छाएं हैं, उन्हें, हमारे आदर्शों को, आइडल्स को सेट किया है, फुलफिल किया है. ओके, ये हमारे नीड्स को फुलफिल कर रहा है. हमें जो भी ज़रूरत है, जिस भी तरह के लॉ की नीड होती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो फुलफिल कर रहा है. नाउ व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशन डूइंग टू फुलफिल आवर नीड्स? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, हमारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए क्या कर रहा है? लेट्स रीड. फर्स्ट, डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम. हमारी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा हो? इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और किंगशिप और डिक्टेटरशिप? विच टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वी हैव? Who gives us the answer? That is our constitution. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि हमारी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, वहाँ पर गवर्नमेंट कैसी फॉर्म होगी और कौन फॉर्म करेगा. ऑल दीज थिंग्स आर रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, नेक्स्ट, provide certain significant guidelines that help in decision making with the democratic setup. गाइडलाइंस दी गई हैं जो डेमोक्रेसी में डिसीज़न लेने के लिए ज़रूरी हैं. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, हमें इंस्ट्रक्शंस देता है कि रूल्स कैसे बनाए जाएं, उन्हें इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, किन लोगों के लिए रूल्स बनाए जाएंगे, किस तरह के रूल्स बनाए जाएंगे. Okay, all these things are written in our constitution.
So our constitution provide certain significant guidelines that help in decision making within a democratic setup. Okay. Next is lays down rules and provides safeguard against misuse of power and abuse of authority, which leads to gross injustice by those in power. Rules are provided and safeguards are provided. Safeguard means सुरक्षा कवच, जो हमें सेव करते हैं, जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं. Okay, in our constitution rules are written and it provides safeguard against misuse of power and abuse of authority. Okay, the persons who has पावर, जो पावरफुल पर्सन्स हैं, जो गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं या जो अथॉरिटी में हैं, उनसे हमें सेव करने के लिए रूल्स लिखे गए हैं, सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए हैं. ओके, इज इट क्लियर कि रूल्स आर रिटन एंड सेफगार्ड्स आर provided by the constitution against the misuse of power and abuse of authority, which leads to gross injustice by those in power. वो लोग जो पावर में हैं वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें और अपने जो उनके पास अथॉरिटी है, एक राइट है रूल करने का, उसे मिसयूज़ ना करें, इनजस्टिस ना करें लोगों के साथ. इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल्स लिखे हैं और हमें सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए हैं. ओके, नेक्स्ट इज गारंटीज सर्टेन राइट्स बेस्ड ऑन इक्वालिटी टू एस्टैब्लिश सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जस्टिस. इक्वालिटी पर बेस्ड राइट्स गिवन है हमें. वी हैव right to freedom, right to equality, okay, and other so many rights are there. ठीक है, right to education is given. तो इस तरह से बहुत से rights हैं जो equality पर based हैं. ये rights क्यों हैं? To establish social, political, economic justice, कि सभी को सोसाइटी में रहने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, पॉलिटिक्स में आने के लिए, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के लिए, अपना स्टेटस अपग्रेड करने के इक्वल चांसेस मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले. ओके, तो हमें राइट्स देने का मेन मोटिव है कि हमारी कंट्री में सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एक इक्वल स्टेटस हो, सबको इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ मिले ग्रो करने की. नेक्स्ट इज एंश्योर दैट मेजॉरिटी ग्रुप्स आर नॉट डिप्रिव्ड ऑफ द minority groups are not deprived of the benefits available to the majority group. अब minority क्या है? Minority and majority, these are two words given in this line. Minority, as the name shows, mini मतलब कम. Minority means वो लोग जो numbers में कम हैं. ठीक है. Minority groups और majority means जो मेजर हैं, जो जिनकी नंबर ऑफ पर्सन्स ज़्यादा हैं. ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ मिनॉरिटी एंड मेजॉरिटी. कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट मिनॉरिटी ग्रुप्स आर नॉट डिप्रिव्ड ऑफ द बेनिफिट्स. मिनॉरिटी ग्रुप्स में को सभी बेनिफिट्स मिले जो मेजॉरिटी ग्रुप्स को मिलते हैं. उन्हें डिप्रिव्ड मतलब दूर ना रखा जाए. उन बेनिफिट्स से जो मेजॉरिटी ग्रुप को मिल रहे हैं वो सभी बेनिफिट्स मिनॉरिटी ग्रुप्स को भी मिलें और उन्हें बेनिफिट से दूर ना रखा जाए. ये भी कौन इंश्योर कर रहा है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंश्योर्स दैट द मेजॉरिटी ग्रुप डज नॉट डोमिनेट द मिनॉरिटी. जो ज़्यादा लोग हैं वो
कम लोगों को दबा ना दें, उनकी आवाज़ को, उनकी वॉइस को वो दबा ना दें, ठीक है, सप्रेस ना कर दें उन्हें। इस चीज़ का भी श्योरिटी दी जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर कर रहा है कि मेजॉरिटी ग्रुप डोमिनेट ना करे मिनॉरिटी ग्रुप को। कार्ड्स आर नेशनल इंटरेस्ट, जो हमारी नेशन के लिए अच्छा है वो काम किया जाए। आर कॉन्स्टिट्यूशन गार्ड्स आर नेशनल इंटरेस्ट, हमारी नेशन के वेलफेयर के लिए जो भी किया जाना चाहिए वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है। इट गार्ड्स ऑल द थिंग्स। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी नेशन, हमारी कंट्री की भलाई के लिए जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें गार्ड करता है। दैट इज़ आर सिक्योरिटी, आर डेवलपमेंट, जो हमारे नेशनल गोल्स हैं उन्हें गार्ड कर रहा है, उन्हें वो हेल्प कर रहा है टू अचीव आर नेशनल गोल्स। Constitution does not allow dictatorial or biased decision. Dictatorial means dictatorship. Have you ever listened the name of Hitler? Hitler was a dictator. Dictator का मीनिंग है कि एक पर्सन का रूल चलना। अगर उसने यस कहा तो यस, if he said no then no. Okay. There is no room for discussion. कोई डिस्कशन के लिए वहाँ पर प्लेस नहीं है। ओके, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता कि इंडिया में कभी भी डिक्टेटरशिप हो या बाइस्ड डिसीज़न लिए जाएं। बाइस्ड डिसीज़न मीन्स, इट मीन्स दूसरों से डिस्क्रिमिनेशन करना, किसी के एक पर्सन के फेवर में ले लेना और दूसरे के अगेंस्ट कोई डिसीज़न लेना, ठीक है। तो बाइस्ड डिसीज़न लेने के भी अगेंस्ट है और डिक्टेटरशिप के भी अगेंस्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर ऐसा होता है तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को, जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, उसे चेंज कर देता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे किसी भी चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा है। It plays a crucial role in democratic society towards the achievement of desired goal. If there is a democracy, only then we can achieve our goals. In democracy, everyone is equal. In democracy, everyone gets equal opportunity to develop themselves, to grow. Okay, तो यहाँ पर बहुत क्रूशियल, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सोसाइटी में हमारे नेशनल गोल्स को, हमारे इंडिविजुअल गोल्स को अचीव करने में। सो दीज आर द मेन रिक्वायरमेंट्स दैट आर फुलफिल्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये मेन रिक्वायरमेंट्स है कि वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को बता रहा है, वो चेक कर रहा है कि मेजॉरिटी मिनॉरिटी को डोमिनेट ना करे, मिनॉरिटी को प्रॉपर राइट्स मिलें, ओके, और हमारे जो गोल्स हैं वो हम फुलफिल कर सकें, ठीक। एंड द पर्सन हु हैज़ अथॉरिटी, हु हैज़ पावर, कुड नॉट मिसयूज़ देयर पावर, ठीक। तो ये सब चीज़ें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेक करता है, हमें प्रोवाइड कर रहा है, और इन सब रिक्वायरमेंट्स के लिए ही हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, ओके। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इफ़ देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशन, देन एवरीवन डू देयर ओन, अपनी मर्ज़ी से, अपनी विशेस के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, तो वहाँ पर बहुत आई थिंक इंस्टेबिलिटी होगी, ओके। सो वी नीड आवर कॉन्स्टिट्यूशन for the proper working of a country, proper working for the organization or organs of the country, okay. So that's it. In this video we have discussed what is constitution and why there is a need for the constitution, okay. So read these and learn these also. These are very much important topic and you have to learn these,
That's it for today. Thank you and have a nice day.